Students, today we will discuss the remaining parts of the lesson Kings, Farmers and Towns. Today we will discuss the different sources of Mauryan Empire, about the Ashoka's Dhamma and also the administrating system and also the division of empire. So let's start. See, sources of Mauryan Empire. It is one of the most important question of this chapter. When you will write the different sources of Mauryan Empire, during the time you will write these points. Here is clearly given all the important points. So first point is Megasthenes Indica. Megasthenes, he was a Greek ambassador. He wrote Indica. तो ये इंडिका बुक देखने से हमको पता चलता है कि इतना एंशियंट टाइम में मौर्यन एम्पायर कैसा एमर्ज हुआ था, कैसा डेवलप किया था. नेक्स्ट, कौटिल्यस अर्थशास्त्र. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस बुक. मीन्स इट इज ए स्टेट क्राफ्ट. मतलब ये एक एम्पायर को कैसा अच्छी तरह से, एक तो साम्राज्य को, एक तो राज्य को कैसा अच्छी तरह से मतलब शासन किया जाता है, इसी के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बहुत इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. और दिस बुक इज डिवाइडेड 15 पार्ट्स, 160 चैप्टर्स एंड 6380 श्लोकास. नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेस. द दीपवंसा एंड महावंसा. These are also the important sources when we are knowing about the Maurya Empire. Then during the time we are also following the literary sources Dipavamsa and Mahavamsa. Another important book, Kalpasutra. It was written by Bhadrabahu. It is also one of the important sources. Then Mudrakya. It was written by Visakhadatta. Visakhadatta also wrote one important book. That name was Mudrakya. And through this book we can know about the Nanda dynasty, means how Nanda dynasty was destroyed by Chandragupta Maurya. Now, the remaining sources, Buddhist and Jaina literature. Through this also we can know the important informations. Puranas also gives us about the Mauryan Empire informations. And most important point is that Ashoka's inscription on rocks. अशोका ने रॉक के ऊपर में, एनग्राव द रॉक मीन्स उसी के ऊपर में भी बहुत कुछ शासन का शैली को और बहुत कुछ टॉपिक को उसी के ऊपर में लिखा गया था. एंड पिलर्स मीन्स थ्रू आउट द एम्पायर, बहुत सारा पिलर्स भी हमको अभी देखने के लिए मिलता है. तो जिसी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ इंफॉर्मेशन पाते हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट was the Dhamma, his code of righteous conduct. धम्म के माध्यम से बहुत कुछ मतलब कैसा it gives an insight into the administration and how Ashoka unified his empire. धम्म को प्रचार करके अशोका ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसा स्ट्रॉन्ग किए थे एंड एम्पायर को कैसा यूनिफाइड किए थे, उसी के बारे में हमको बहुत अच्छा से इंफॉर्मेशन मिलता है. So this was also important sources. And another sources, it was the different coins also published, introduced, and different stupas and also monuments, pottery, artifacts, sculptures. So students, यहाँ पे about the Mauryan Empire के बारे में हम लोग जितने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये सारे सोर्सेस के माध्यम से करते हैं. तो ये all are the sources you have to write when you will write the answers. So now we will discuss what is the Dhamma. Ashoka's Dhamma. It is one of the religious duty of Ashoka based on teachings of Buddha. यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध का टीचिंग को लेकर के ड्यूटी को मतलब एक तो रिलीजियस ड्यूटी के माध्यम से मतलब यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है. So that is known as the Dhamma. And different principles of Dhamma also given here. Now we will discuss it. तो पीपुल मतलब यहाँ पे राज्य में सारे लोगों को पीस एंड हार्मोनी के तरफ, पीस एंड हार्मोनी रहना चाहिए लोगों के भीतर में. अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन इंजुरी टू लिविंग क्रिएचर्स. किसी को, कोई भी लिविंग क्रिएचर्स को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए और नॉन वायलेंस को हम लोग एडॉप्ट करना चाहिए. ये सब परिवर्तन, ये सब चेंजेस आफ्टर द कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर के बाद अशोका के भीतर में मन में आया था. और अशोका
जब चेंज हो गए थे तब वो बुद्धिज्म को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करके लोगों के भीतर में इसको स्प्रेड करने के लिए कोशिश किए थे और अपना एम्पायर को स्ट्रांग किए थे, यूनिटी किए थे. So that was the non-violence, non-injury to living creatures. Number 3, love, tolerance and respect towards other religion. खाली बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के बाद भी अदर रिलीजन्स को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए. टॉलरेंस एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स. चिल्ड्रन भी एल्डर्स को ओबे करना मतलब बड़ों का बात मानना चाहिए, गुरुजनों को सम्मान देना चाहिए, ये भी धर्मों में था. ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड मतलब सत्य संग करना चाहिए, सत्य रास्ता में जाना चाहिए. चैरिटेबल एंड काइंड दया और बहुत चैरिटेबल वर्क भी समाज में करना चाहिए. ये धर्मों में लिखा हुआ था एंड इट वाज द रिलीजियस ड्यूटी ऑफ अशोकास धर्म. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एम्पायर. कौटिल्यस अर्थशास्त्र एंड इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर में, वो जो मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर में जानने का. सो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य 5 एलिमेंट्स मेड ए स्टेट. स्टेट में 5 एलिमेंट रहना चाहिए. वन इज राजा मीन्स स्वामी, दुर्ग मीन्स फोर्ट, एलाय मीन्स मित्र, ट्रेजरी एंड ऑल्सो द आर्मी. आर्मी मीन्स पावर. ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर में एक स्टेट स्ट्रांग होता है. ये चीज कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र में लिखे हैं, जिसी को लेकर के मौर्य एम्पायर में सारे एम्परर जो है फॉलो किए थे और एम्पायर को स्ट्रांग बनाए थे. डिवीजन ऑफ एम्पायर. नाउ वी विल डिस्कस डिवीजन ऑफ एम्पायर. उसी समय में एम्पायर का डिवीजन कैसा हुआ था, 4 भाग में डिवाइड हुआ था. एक तो था उत्तर पथ जो कि तक्षशिला उस समय में कैपिटल था. दक्षिण पथ जिसको सुवर्णगिरी था दक्षिण पथ में. परिचय पथ दैट इज तोसाली. अवंती पथ उज्जैनी एंड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल. सो ये 4 भाग में मतलब उत्तर पथ, दक्षिण पथ, परिचय पथ एंड अवंती पथ ऐसा टाइप में मौर्य एम्पायर को डिवाइड किया गया था. So students, today only that much for you. You have to write all the points and also remember all the points because it is so much helpful for when you will write the answer of that questions. So next video we will discuss the remaining parts of the lesson. Thank you.